Hi, welcome or welcome back to my channel. My name is Kriti and today's video is going to be a sit down video, as you can see, and I'm going to share some of my most favorite tips to like ace your academic year. And I swear by this video, if you're watching it till the end, I'm pretty sure that you're going to ace your academic year this year. Yeah. So this these tips helped me to go from 70% to 90%. And I kid you not, I did not stop my musti, because musti is my old, like, musti is my all time favorite, ultimate, precious thing to me. I cannot function without it. I don't know how I am functioning without it, without my friends, but like I'm functioning. I'm just surviving, guys. Yeah. So let's get back to the topic. Okay, I'm just going to go straight with the points. First thing first. Okay, I scored 70% in सेवेंथ. एंड अब कुछ लोग बोलेंगे ओ माय गॉड, सेवन्थ में 70% लाई है, ये वो, सेवन्थ तो बहुत ईजी होती है, दैट ब्ला ब्ला ब्ला, और छोटी क्लास की बात कर रही हूँ. बट for you need to understand that in the class which you are in is always seems harder, and when you drop out or when you move to the next class, it always seems easier. So for me, seventh was hard because I didn't study. I prioritized other things over studying. That's why I scored 70%. And yeah, seventh May, when I got my result, I was so traumatized. I cried, and the voice just came from within me जागते रहो. that I need to score, I need to show everyone that I am capable of that. So the first step is the voice should come from your within, from your soul. It should scream. For you, that is the most important thing, right? Your ultimate goal that you have to score, you have to achieve. And one thing that just came into my mind, and that was something that motivated me, was people had expectations from me, and I never want to kill people's expectations, and that is something that keeps pushing me. If someone says that इस बार तेरे को इतने लाने हैं, तू इतना ला सकती है, आई एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू, आई एक्सपेक्ट, and it just creates a very a very, something atmosphere in my mind, that I just do it because that person which I adore, which I just swear by, expects that from me, and I am going to do it. So we have talked about that the voice should come from you within, but the thing is, you cannot understand what's happening, you don't understand maths, you don't understand this, you don't understand that. So a solution for this, just start. नहीं आ रहा है, पूछो. आई नो, बहुत ऐसा अजीब सा लगता है कि लाइक सबको आता है, एंड आई एम जस्ट आस्किंग अ बेसिक थिंग. आई जस्ट डिड नॉट आस्क फ्रॉम टीचर्स फॉर हेल्प. मैं टॉपर से पूछती थी, एंड आई फेल्ट नो शेम डूइंग दैट. एंड I kid you not, topper is my best friend. So okay, I used to just go to her, and I used to just tell her, can you please explain me this? And she used to explain me without making fun of me, because she was my best friend. But I have shifted to a new school, and when I ask other toppers who are not my best friend right now, so they explain me very well, and nobody is like कि मैं तो नहीं दिखा रहा, मुझे खुद का काम करना है. That nobody does. Okay. So you have to make up the courage कि लाइक अगर आपने सोच लिया है ना कि अगर मैं उससे पूछ लूँगा तो उसको लगेगा कि यार ये तो कंपटीशन से ही बाहर हो गया, तो दैट्स द बेस्ट थिंग यार. मतलब अगर सामने वाले को लग रहा है कि आप कंपटीशन से बाहर हो गए हो और आप एकदम से कंपटीशन के अंदर आ गए, तो मतलब मौके पे चौका हो गया भाई, छक्का लगा दिया आपने. ओके. एंड नाउ, अब तो ये तो चीज़ हो गई हमारी मेंटेलिटी वाली बात. नाउ व्हाट स्टडी हैक्स दैट आई यूज़. सबसे पहली बात, आई स्टडीड फॉर टेस्ट. कोई भी टेस्ट हो रहा है, आई डिड नॉट यूज टू स्टडी. आई एम दैट वन किड जो एक रात पहले एग्ज़ाम के पढ़ता है, या फिर एग्ज़ाम में ही पढ़ता है. आई डोंट नो, बट मैं टेस्ट के लिए कभी नहीं पढ़ी हूँ. बट आई जस्ट सॉ ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स. आई हैड अ वेरी टॉपर वाला, पता नहीं, फ्रेंड्स सर्कल दैट टाइम. सो मेरे सारे दोस्त पढ़ते थे, एंड दे काइंड ऑफ मोटिवेटेड मी ऑल्सो. बट ऐसा क्या होता है ना, व्हेन यू स्टडी फॉर टेस्ट, यू आर स्टडिंग इट.
आपको लग रहा है कि आप नहीं पढ़ रहे हो, आप सिर्फ टेस्ट के लिए पढ़ रहे हो, बट यू हैव स्टडीड इट टिल फॉर द एग्ज़ाम ऑल्सो। तो वो बहुत हेल्प करता है, क्योंकि आप लास्ट मिनट जब चीज़ें पढ़ते हो तो आपको ना वो एक्चुअल में रिटेन करनी पड़ती है इन्फॉर्मेशन। जब आप पहले से ही पढ़ के बैठे हो ना, तो इतना स्ट्रेस नहीं होता है आपके पास। सो दैट वॉट आई डिड दैट टाइम, लाइक ओरल टेस्ट होते थे हमारे, तो मेरे को ना बेइज्जत नहीं करवाना होता था अपने आप को। तो मैं, पता है, मेरा ना मन नहीं है, मेरे को रोना आ रहा है, पता नहीं कुछ हो रहा है मेरे, या फिर मेरे साथ बहुत ऐसे बुरी बुरी चीज़ें हो रही हैं, आई वुड जस्ट, मैं रोते रोते बुक खोल के पढ़ती थी। दैट वॉज आई यूज टू डू। And the third thing is like, hard work never goes in vain. That's the quote I just like. इस कोड के बिना आई कैन नॉट सर्वाइव, या एवरी चीज़, लाइक हर चीज़ बोलती हूँ कि इसके बिना मैं सर्वाइव नहीं कर पाती। ओके, बिकॉज एवरी टाइम मैंने देखा है कि अगर मैं हार्ड वर्क करती हूँ किसी चीज़ के लिए, या फिर मैं एक रात भी जगी हूँ उस चीज़ के लिए, मेरे मार्क्स कैसे भी आ जाते हैं। लाइक मैं नहीं समझ पाई या फिर मेरे से नहीं हो रहा है, पर अगर मैं मेहनत नहीं करती हूँ ना, तो मेरे से कुछ नहीं होता है। आई जस्ट डू नॉट गो बाय लक, इट्स ऑल अबाउट हार्ड वर्क। एंड आई जस्ट थिंक लाइक दैट कि अगर मैं, आई हैव नॉट स्टडी फॉर द टेस्ट, मैंने टेस्ट के लिए पढ़ाई नहीं करी, पर मैंने ना कुछ और जो काम है उस पर इतना ध्यान दे दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई हैव टू फिनिश दैट वर्क, एंड उसके लिए मैं पूरी रात जगी, बट मैं गलती से ना, या फिर मेरे पास टाइम नहीं था, इस वजह से मैं एक टेस्ट के लिए नहीं पढ़ पाई। तो पता नहीं ऐसा कुछ यूनिवर्स कर देता है जिसकी वजह से मुझे वो टेस्ट ना देना पड़ता है, या फिर ऐसा कुछ हो जाता है कि वो टेस्ट बहुत ईजी आ जाता है और वो मेरे को आता है। समथिंग लाइक दैट हैपन्स। एंड उसकी वजह से मेरी एक मेंटेलिटी है कि जब भी मैं कुछ कर रही होती हूँ, या फिर मैं स्ट्रेस्ड होती हूँ कि अरे टेस्ट है, मैं तो पढ़ाई नहीं, ये वो, आई जस्ट थिंक दैट कि मैंने हार्ड वर्क करा है, वो वेन में तो नहीं जाएगा, कुछ ना कुछ तो ऐसा ही करेंगे कि दैट जस्ट डिसअपियर्ड, लाइक टेस्ट नहीं होगा अब, टेस्ट का तो नामो निशान है क्या, समथिंग लाइक दैट हैपेंस। सो या दिस, एंड नाउ जस्ट प्ले टीचर। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गया, बाकी जो बच्चा था काली चोर ले गए। टीचर जब आप बचपन में खेलते थे और आपके मार्क्स भी अच्छे आते थे, याद आ रहा है आपको? या कंसंट्रेशन भी इस टाइम अच्छा होता था, आप इतना फ़ोन नहीं चलाते थे, यूट्यूब नहीं होता था इतना ज़्यादा, एंड कार्टून्स एंड टीवी देखना वाज योर मेन सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, एंड नाउ इट इज़ नॉट। बट लेट मी जस्ट टेल यू, आप ना स्क्रॉल इसलिए करते हो क्योंकि आपके ब्रेन को क्यूरोसिटी चाहिए होती है, एंड स्क्रॉलिंग रील्स में क्या बात कर रहे भाई, ये तो बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है, मुझे पता ही नहीं था यार। इतनी नए नए कंटेंट आते हैं हर 15 सेकंड में, दैट योर ब्रेन जस्ट रिसीव्स द डोपामिन इट नीड्स। बट पढ़ाई में इट्स अ स्लो प्रोसेस एंड टाइम लगता है सब चीज़ों में, सो दैट्स वाई आपका माइंड उधर ही स्टक हो जाता है। सो आई नो फ़ोन छोड़ना इज़ वेरी टफ फॉर मी। मेरा ऐसा कुछ ज़्यादा काम नहीं होता फ़ोन से, ना मेरे पास मैं किसी को कॉल करती हूँ इस फ़ोन पे, एंड मतलब मेरे घर वालों ने रिचार्ज नहीं करवा रखा है इस फ़ोन पे, वाईफाई से चलाते हैं, बताओ क्या करूँ। तो मैंने ना क्या करा, वन थिंग दैट यू कैन डू, दैट यू शिफ्ट ऑल ऑफ योर सोशल मीडिया और एनी ऑफ द स्टफ टू योर लैपटॉप, बिकॉज उसके लिए आपको टैब्स ओपन करने पड़ेंगे, एंड इट्स अ वेरी ड्रेडेड प्रोसेस, एंड हु इज़ गोइंग टू वॉच योर शॉर्ट्स एंड रील्स ऑन लैपटॉप, इट्स वेरी अनोइंग फॉर मी एक्चुअली। एंड मैं तो ऐसा करती हूँ, मैं अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर देती हूँ, एंड फॉर मी, मैं बहुत ज़्यादा आलसी हूँ, तो मुझे फ़ोन को ऑन करने में इतना वो लगता है ना कि मैं क्या बताऊँ, आलस आता है। एंड वाइल स्टडिंग आई यूज टू डू दिस, दैट कि मैं अपने फ़ोन को लेती हूँ, टाइम लैप्स ऑन करती हूँ एंड पढ़ने बैठ जाती हूँ। दैट इज़ लाइक, अब मेरे टाइम लैप्स चल रहे हैं, मुझे टाइम लैप्स चाहिए, मुझे चाहिए तो चाहिए। मुझे तो 9 कटाई खानी है, मैं तो 9 कटाई खाऊं। मैं फ़ोन को नहीं छूँगी, क्योंकि मेरे फ़ोन से ही सब कुछ होगा ना, फ़ोन से ही वीडियो बनेगी। अब मैं उसको छू लिया तो भाई गई मैं, गेम ख़त्म, आई एम गे या that's what I used to do. And second thing, ये तो कुछ ज़्यादा ही चीज़ बोली। And now the most important part, make it fun. How to make it fun? बोल दिया तुमने तो make it fun। ये बोल देते हैं कि अपना 1 घंटे पढ़ लो, फिर उसके बाद आप चॉकलेट ले आना, चॉकलेट में मिला नहीं देती, पैसे नहीं देती, अब कहाँ से मैं चॉकलेट ले आऊँ बताओ अब। मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ। तो let me just tell you
Rewards are not something that is necessarily be used or related to money. आप 1 घंटा पढ़ने के बाद आपको 5 मिनट डांस करने को, या फिर 10 मिनट आप अपने आप को डांस करने दो, या फिर अपना 5 मिनट अपनी वॉक पे चले जाओगे, या फिर आप लाइक टेरेस पे या फिर कहीं पे घूमने चले जाओगे और यू रीड योर फेवरेट बुक. बस फ़ोन मत चलाना, क्योंकि फिर आपकी साइकिल एक बहुत ही बड़ी, मतलब 5 मिनट नहीं करते करते 5 घंटे हो जाते हैं. इसलिए आई जस्ट अवॉइड यूजिंग फ़ोन एंड आई मेक इट एस्थेटिक कि मैं ना अपना स्टडी डेस्क बहुत प्रिटी रखती हूँ, कि मुझे ना वहाँ पे बैठने का मन हुए. अगर आपका ना जो स्टडी डेस्क है वो थोड़ा सा फ्लिमजी या फिर बहुत ऐसे अजीब सा पड़ा हुआ ना, तो आपको मन भी नहीं करेगा. एंड देखो, सब ऐसा बोलते हैं ना कि पढ़ने वाला बच्चा कहीं भी पढ़ लेता है. जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा, जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा, जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा. पर ना हम ना इतने वो हो गए हैं कि हमने लोगों को देख लिया है इतना सारा वो कंज्यूम करते करते, इनकी इतनी अच्छी अच्छी डेस्क होती है, बट हमने ना एक हमने ना एक माइंडसेट बना लिया है कि हमारी डेस्क अच्छी होगी तभी हम पढ़ पाएंगे, नहीं तो हम नहीं पढ़ पाएंगे. तो मेक इट एस्थेटिक, लाइक एक अच्छा सा टेबल क्लॉथ लगा लो, जैसे मैंने इसको स्यू करके करवा लिया. एंड आई हैव अ विजन बोर्ड एंड दैट्स व्हाट आई हैड. मैंने ज़्यादा कुछ नहीं करा, मैंने 2-4 कॉपियाँ और लगा, मतलब बुक्स और लगा दी, एंड दैट्स इट. Everything does not need to be necessarily expensive and something like that. And what I used to do, मैं लाइट बंद कर देती थी. The only light work that time was my laptop's light, and मैं कैंडल जला देती थी एक, and that used to be so romanticized like stuff, and I used to like it so much. And one more thing is कि सबसे मेन लाइट जो आ रही है वो आपकी लैपटॉप से आ रही है, तो आपका ना फोकस वहीं जाएगा, आपका फोकस अंधेरे पे नहीं जाएगा अगर आप लाइट में पढ़ रहे हो. एंड दैट्स द मेन रीज़न आई कैन नॉट स्टडी वाइल इट्स डे. मतलब दिन में मेरे से पढ़ाई नहीं होती, आई एम ए नाइट ऑल, क्योंकि मेरा जो फोकस है ना वो दूसरी चीज़ों पे चल जाता है. एंड आई लाइक टू रोम अराउंड थिंग्स लाइक समथिंग लाइक दैट. सो व्हाट आई यूज्ड टू डू इज़ जस्ट लाइक मैं लाइट बंद कर देती हूँ, एंड दैट्स वर्किंग इज़ माई लैपटॉप लाइट. ओके, वी हैव टॉक्ड अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स. एंड अगर आप फिर भी अपने आप को सेल्फ डाउट करते हो, या फिर सबसे पहली चीज़, डोंट गो फॉर परफेक्शनिज्म, गो फॉर प्रोग्रेस. दैट्स द थिंग. अगर आप कहोगे कि एक दिन में मैं इतना पढ़ लूँगा, अगर मैंने इतना नहीं पढ़ा तो मैं पागल हूँ, मैंने नहीं करा, ये नहीं है, वो नहीं है, आई एम जस्ट सो स्टूपिड, आई कैन नॉट डू इट. अगर आपने ना एक भी लेक्चर पढ़ लिया ना जिसमें आपने एक हफ्ते से कुछ भी नहीं पढ़ा है, दैट्स समथिंग दैट यू शुड बी प्राउड ऑफ. यू ब्रोक द साइकिल. ठीक है, ये नहीं होता है कि आपको एक दिन में आपको सबको कंज्यूम कर लेना है. आपको वेट करना होता है, चीज़ें अपने आप हाथ में नहीं आती हैं. उस not everybody is perfect. Practice makes a man perfect. You understand that? That's what I'm trying to tell you. What I'm है कुछ भी बोल रही हूँ मैं. Okay. तो just celebrate your progress. That's what I'm telling what I'm trying to say. Okay. Yeah. Understand? Yeah. Very good. मेरे कैमरे की बैटरी डाइड हो गई थी, so I'm back again stronger. Okay. सो नेक्स्ट थिंग व्हाट आई वाज सेइंग, मैंने इसको कंप्लीट नहीं करा. क्या, अगर आप अपना प्रोग्रेस जो बेयर मिनिमम है उसको बहुत लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए रोमांटिसाइज करोगे. फॉर एग्जांपल, आपने एक हफ्ते तक कुछ नहीं पढ़ा, फिर उसके बाद आपने स्टार्ट करा दैट यू हैव टू डू इट, यू हैड मेड अप योर माइंड, एंड फिर उसके बाद आपने सिर्फ और सिर्फ एक लेक्चर लगाए रोज़ के रोज़ एक हफ्ते तक. गुड. सेकेंड हफ्ते भी यही हो रहा है, तीसरे हफ्ते भी यही हो रहा है, तो ये गलत है. यू हैव टू लेवल अप एवरी टाइम. एक हफ्ते एक लेक्चर, दूसरे हफ्ते 2 लेक्चर, 3 लेक्चर, एंड डू समथिंग लाइक दैट. बट अगर आप ना एक चीज़ पे अटके रहोगे ना तो वो प्रोग्रेस नहीं मानी जाएगी, वो आप ना कंफर्ट जोन में आ गए हो. लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, एंड आई स्वेयर बाय दिस पार्ट, ये बहुत ही अच्छी चीज़ जो मैंने खुद ने सोची है. माई ब्रेन वर्क्स. यस. सो बिफोर डूइंग योर प्रायोरिटाइज प्रोडक्टिव वर्क, do something that the world perceives that productive. For example, reading a book for the world is productive. Productiveness क्या होती है? आपका काम जो आप कंप्लीट कर रहे हो. फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ पेंटर, तो अगर मैं पेंट कर रही हूँ पूरे दिन एंड आई कंप्लीटेड माई आर्ट वर्क, फॉर मी दैट इज़ माई काइंड ऑफ प्रोडक्टिव. फॉर एग्जाम्पल, यू आर अ फिटनेस ट्रेनर, आपने पूरे दिन ट्रेन करा, आपने हेल्दी खाया, आपने यू अर्नड अ लॉट ऑफ न्यू कस्टमर्स, फॉर दैट यू आर बीइंग प्रोडक्टिव. ठीक है, आपने अपने हिस्से का काम करा है.
सो सबसे पहले आपको क्या करना है, डू समथिंग दैट द वर्ल्ड परसीव्स एज प्रोडक्टिव. फॉर एग्जाम्पल, रीडिंग अ बुक इज़ वॉट द वर्ल्ड परसीव्स एज डूइंग समथिंग प्रोडक्टिव, और वर्किंग आउट, और गोइंग फॉर अ वॉक, और समथिंग लाइक दैट. क्योंकि ये अलग अलग प्रोफेशंस के प्रोडक्टिवनेस वाली चीज़ें हैं. रीडिंग अ बुक इज समथिंग दैट इज़ प्रोडक्टिव फॉर एवरीबडी. आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल. ओके, तो डू दैट फर्स्ट. फिर उसके बाद ना आपको ना एक सेंस ऑफ प्राउड फील होगा कि आपने ना ये काम करा, डिस्पाइट बीइंग इन अ स्लम्प, डिस्पाइट बीइंग बीइंग वन ऑफ अ प्रोकास्टिनेटर, यू डिड दैट. तो आपके हैप्पी हार्मोन्स निकलेंगे एंड यू गेट द डोपामिन टू डू योर काइंड ऑफ प्रोडक्टिवनेस. तो आप पढ़ने बैठोगे ना, अगर आपका वही चीज़ चल रही है ना, आप एकदम से एक बोरिंग चीज़ पे चले गए, दैट इज़ स्टडिंग, एंड इट्स जस्ट रिलेटेड टू योर गोल, यू वॉन्ट गो देयर. अगर आप ऐसी चीज़ कर रहे हो जो आपकी जो वर्ल्ड परसीव कर रही है एज समथिंग दैट इज़ प्रोडक्टिव, यू विल डू इट. क्योंकि ना वो इतना रोमांटिसाइज कर लिया गया है ना, दैट योर ब्रेन जस्ट ऑटोमेटिकली थिंक दैट डूइंग दैट इज़ वेरी गुड. लाइक अगर आप वर्कआउट कर रहे हो तो इट्स रियली नाइस दैट. सब हो गया ना, अब क्या बताऊँ, पढ़ लो चुपचाप. सो या एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन. आई एम रियली आई वुड बी रियली ग्रेटफुल अगर आपने ऐसा किया तो. आई जस्ट लव यू गाइज सो मच एंड थैंक यू. बाय.